So, hello everyone. Today we are going to start part 2 of chapter number 10. So, let's start. What shaped and influenced the Indian Constitution? While the Constitution was developed by the Constituent Assembly, it had many influences. The experience, ideas, and ideals of the Indian freedom movement were a significant influence. India's civilizational heritage and culture also played a key role. Useful learnings from the constitution of other countries were also considered. कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, है ना? और बट ये और भी चीजों से क्या था, इन्फ्लुएंस था, है ना, प्रभावित था। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अनुभव, उसके एक्सपीरियंस, आइडियाज और आइडियल्स का इस पर एक बड़ा असर था। इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल, इन सभी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली अच्छी बातों को भी इसमें शामिल किया गया। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, many key ideals and values of the Indian freedom struggle were enshrined in the Constitution. The Constitution was the cornerstone for an independent India. A number of leaders of India's freedom movement were members of the Constituent Assembly and therefore carried their experience and ideas for the freedom struggle to the Constitution. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ आइडियल्स और वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए, है ना, शामिल करे गए। संविधान स्वतंत्र भारत की नींव बना। स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेता संविधान सभा में थे और उन्होंने अपने अनुभव और विचार इसमें जोड़े। Some of these values and ideals are equality of all, justice for all, freedom, fraternity, preservation of India's cultural heritage, and the idea of using the Constitution as a tool for and means of achieving these values and ideals. Some of these values और ideals दिए गए हैं, तो चलो रीड करते हैं। जैसे इक्वेलिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम, fraternity, preservation of India's cultural heritage एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, को इन्होंने हासिल करने का एक साधन माना। इन सारी वैल्यूज को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सारी ये वैल्यूज ऐड करेंगे तभी हम इनको अचीव कर पाएंगे। द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स फ्रॉम द freedom struggle also provided answers to many of the how and what questions. फ्रीडम स्ट्रगल से के एक्सपीरियंस और लर्निंग के अकॉर्डिंग हमको कुछ सीख भी मिलती है जो हमको व्हाट और हाउ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करती है, जवाब देती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती है, तो इसको आप रीड कर लीजिए। India's civilizational heritage and history. Let's remember, in the chapter on unity in diversity or many in the one, in grade 6, we studied what makes India one country and the underlying unity that embraces the diversity. क्लास 6 का जो चैप्टर था यूनिटी इन डाइवर्सिटी या मैनी इन वन, है ना, क्लास 6 में जो चैप्टर था, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि भारत को एक देश क्या बनाता है और इसकी एकता कैसे विविधता को जोड़कर रखती है। दिस आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग वन कंट्री इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एम्बेडेड इन अवर cultural acceptance of the idea that people could have different points of views, nature as sacred, the pursuit of learning and the knowledge.
भारत एक देश है। यह विचार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। हमारी संस्कृति में भी कुछ मूल सिद्धांत हैं, जैसे अलग-अलग विचारों को मानना, प्रकृति को पवित्र समझना और ज्ञान और सीखने की खोज करना। Respect for women, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, and Sarve Bhavantu Sukhina, an invocation for the well being of all creatures. All these principles find a place in our constitution, though you might find them expressed a little differently. Respect for women, महिलाओं का सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिन सुखिना सभी सुखी रहें जिसे विचार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, हालांकि ये वहाँ थोड़े अलग तरह से लिखे गए हैं। Let's remember, earlier we described various types of governance system that we experimented within India, from the Janpadas, Sanghas, rulers and their councils, Kautilya's concept of Saptanga, Raj Dharma and so on. On the whole, there has been a great emphasis on the duties and role people in governance. Let's remember. याद करें हमने भारत की अलग-अलग शासन व्यवस्थाओं की चर्चा की थी, जैसे जनपदास, संघास, रूलर्स एंड देयर काउंसिल्स, कौटिल्याज कंसेप्ट ऑफ सप्तांगा एंड राजधर्मा एंड सो ऑन, है ना? इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था। ठीक है। कुल मिलाकर शासन में लोगों के कर्तव्यों और भूमिकाओं पर जोर दिया गया है। It was therefore quite natural that the constitution makers would incorporate these ideas of our civilizational heritage into our constitution. Fundamental duties, for instance, are part of it. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान बनाने वालों ने हमारी परंपराओं के विचार संविधान में डाले, कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसमें शामिल हैं। लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इन एडिशन, इन द इंडियन ट्रेडिशन of a no bhadra karvato hyantu vishwatah, let noble thoughts come to me from every side. The constitution makers studied the constitutions of France, USA, UK, Ireland, Australia, and other countries that have a democratic system to explore their usefulness for our context. इसके अलावा इन द इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं में ए नो भद्रा करवातो यान्तु विश्वातः के अनुसार, जिसका अर्थ है सभी दिशाओं से हमारे पास अच्छे विचार आए। संविधान बनाने वालों ने फ्रांस, यूएसए, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया ताकि यह समझ सके कि हमारे देश के लिए उनमें क्या उपयोगी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वर अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन which enshrined them from the French Revolution of 1789. The idea of the directive principles of state policy, which we will study shortly, was inspired by Irish Constitution, and the American Constitution helped shape the concept of an independent judiciary. For example, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के आदर्श फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो 1789
9 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े थे। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार अमेरिका के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Key features of the Constitution of India. Before we get acquainted with the main feature of the Constitution, let us revise some of the concept we saw in grade 6. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मेन फीचर्स जानने से पहले हम क्लास 6 में पढ़ी गई कुछ बातों को दोहराते हैं, है ना, रिवाइज करते हैं उन कंसेप्ट को। लेट्स रिमेंबर there are three organs of government: legislative, executive, and judiciary, and the separation of powers is essential to their effective working. The legislature makes the law. The law is implemented by the executive, which is headed by the prime minister. गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये अच्छे से काम करे इससे इनकी तीनों पावर्स को अलग-अलग उसमें डिवाइड करा जाता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है ना? और वो लॉ इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं, और वो उसके वो व्हिच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। किससे हेडेड होता है? प्राइम मिनिस्टर से। The judiciary ensures that all laws made are in accordance with the Constitution. It also decides whether a law has been broken and what punishment is necessary. We have a three-tier system of government: central, state, and local. Some functions and responsibilities are reserved for the central government and the other are assigned to the state government. जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि जो सभी कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, है ना? और ये यह भी तय करती है कि कानून जो लोग तोड़ते हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए, है ना? क्या सजा देनी होगी, है ना? और हमारे में 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का: सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है? कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है ना? और कुछ किसको असाइन करी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस these points comprehensively. It clearly defines the role, function, responsibilities, and accountability measure for each organ of government. The electoral system has been laid down to ensure that every eligible citizen of the country is enabled to vote. संविधान इन बातों की पूरी तरह स्पष्ट करता है। यह हर सरकारी अंग की भूमिका, काम, जिम्मेदारियां और जवाबदेही तय करता है। मतदान प्रणाली भी बनाई गई है ताकि हर योग्य नागरिक वोट डाल सके। Other core aspects of Constitution are the fundamental duties, fundamental rights, and the directive principles of state policy. The infographic provide us with example of a few of fundamental duties and rights. The directive principles of state policy, DPSP as they are popularly called, represent the essence of the social and economic vision that the framers of the Constitution had for India. The examples we present in the infographic illustrate the principles they wanted governance to follow. संविधान के दूसरे मुख्य भाग हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्फोग्राफिक में कुछ मूल कर्तव्य और एक अधिकारों के उदाहरण दिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान बनाने वालों की भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक सोच को दिखाते हैं। इन्फोग्राफिक के उदाहरण बताते हैं
कि वे चाहते थे कि शासन इन्हीं सिद्धांतों पर चले, मतलब इन्हीं प्रिंसिपल्स पर चले। डोंट मिस आउट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गोल्स that the government should try to achieve. They reflect the direction they wished the country take to make India better for all. For example, everybody in the country must have a good standard of living. But if the government does not make effort to follow this, one cannot go to a judge and complain about it. The DPSP are more likely like guidelines that strict rules. Fundamental rights, on the other hand, are promises that must be kept. If someone treats you unfairly because of who you are, you can actually go to the court and the judge can help you. Directive Principles DPSP गवर्नमेंट के ऐसे गोल्स हैं जिन्हें वह हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे हर किसी को अच्छा जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ऐसे नहीं करती, तो आप कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि ये सख्त नियम नहीं, सिर्फ दिशा निर्देश है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स इसके उल्टे हैं, ये आपके अधिकार हैं जिनका पालन ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ भेदभाव करता है तो आप कोर्ट जाकर मदद ले सकते हैं और वहाँ पे आपको कौन हेल्प करेगा? जज हेल्प करेंगे। The people who wrote our constitution created this system on purpose. They wanted some rights that could be demanded immediately, fundamental rights, and some bigger goals, directive principles that might take time to achieve as our country progressed. संविधान बनाने वालों ने यह सोचकर व्यवस्था बनाई थी। वे चाहते थे कि कुछ अधिकार तुरंत मिले, जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स, और कुछ बड़े लक्ष्य हों जिन्हें समय के साथ देश के विकास में हासिल किया जाए, जिन्हें नीति निर्देश सिद्धांत कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेट्स एक्सप्लोर। रीड द कोटेशन गिवन बिलो। Which article of the Constitution do you think she was referring to? Why do you think she said that the equality of women was not a new concept for India? Discuss in class. इसमें बोला गया है, नीचे कुछ कोटेशंस दी गई है ना? आपको क्या लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल की बात कर रही थी? और उन्होंने क्यों कहा कि महिलाओं की समानता भारत के लिए कोई नई बात नहीं है? ठीक है, इसको आप डिस्कस करिए अपने क्लासरूम में। Sir, the women of India are happy to step into the rightful heritage of complete equality with men in all spheres of life and activity. I say so because I am convinced that this is no new concept which has been postulated for the purpose of this constitution, but is an ideal that has long been cherished by India. Though social condition for some time has tragically debased it in practice, this constitution affirms that ideals and gives the solemn assurance that the rights of women in law will be wholly honored in the Indian Republic. भारत की महिलाएं खुश हैं कि वे जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार पाने की अपनी सही विरासत में कदम रख रही हैं। मैं ऐसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह कोई नया विचार नहीं है जो केवल इस संविधान के लिए बनाया गया हो। यह तो एक ऐसा आदर्श है जिसे भारत ने हमेशा संजो कर रखा है। हालांकि
कुछ समय तक सामाजिक परिस्थितियों ने इसे कमजोर कर दिया था। यह संविधान उस आदर्श की पुष्टि करता है और यह वादा करता है कि भारतीय गणराज्य में महिलाओं के अधिकारों का पूरी तरह सम्मान किया जाए। The Constitution is a living document. Our constitution makers realized that a need for new laws and rules would emerge over time. For example, Part 4A Fundamental Duties was added in 1976. However, we must remember that any change to the Constitution are rigorously debated in the Parliament before they are accepted. Some require a debate in legislative assemblies as well. Many times, opinions are sought from the general public. Some changes can be also initiated by popular movements. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, है ना, उन्होंने ये समझा था कि समय के साथ नए कानून और नियमों की ज़रूरत होगी। जैसे 1976 में फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ ऐड हुई हैं, है ना? लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि संविधान में कोई भी बदलाव संसद में अच्छी तरह से चर्चा के बाद ही होता है। कुछ बदलावों पर विधानसभाओं में भी बहस होती है। कई बार जनता से भी राय ली जाती है। कुछ बदलाव जन आंदोलन से भी शुरू हो सकते हैं। Let's explore. There was a time when people were not allowed to fly the national flag at their homes. This changed in 2004 when a citizen felt it was his right to express pride in his country and challenge the rule in court. The Supreme Court agreed, saying that flying the flag is part of fundamental right to freedom of expression. We can now fly the tricolor with pride, keeping in mind that it should never be dishonored. एक समय था जब लोगों को अपने घरों पर नेशनल फ्लैग फहराने की अनुमति नहीं थी। ये चेंज कब हुआ? 2004 में, जब एक सिटीजन को ये महसूस हुआ कि अपने देश पर गर्व व्यक्त करना उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया कि हम अब नेशनल फ्लैग फ्लाई कर सकते हैं अपने घरों में। ये किसका पार्ट है? हमारा फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब हम तिरंगे को गर्व के साथ फहरा सकते हैं, यह ध्यान रखते हुए कि इसका कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। We studied the पंचायती राज system in grade 6. This was not a part of the original constitution. It was integrated in 1992 with the 73rd Constitutional Amendment Act. Can you find out the amendments made to the Constitution in the past 10 years? हमने ग्रेड 6 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यह संविधान का मूल हिस्सा नहीं है, है ना? ये ओरिजिनल पार्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। बट इसे 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 10 सालों में संविधान में क्या-क्या बदलाव हुए? The government also creates opportunity for people to provide feedback on proposed laws or changes in rules. See the highlighted portion on the next page. सरकार लोगों को नए कानून या नियमों में बदलाव पर सुझाव देने का मौका देती है। नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट वाला पोर्शन देखिए। डोंट मिस आउट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अ वर्क ऑफ आर्ट। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी लाल नारायण रायजादा wrote his text by hand while Nandlal
Bose and his team illustrated its pages with scenes from Indian history, from Mohenjo-daro to the freedom movements. भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक कला का नमूना भी है। प्रेम बिहारी नारायण रयजादा ने इसे हाथ से लिखा और नंदलाल बोस व उनकी टीम ने इसके पन्नों पर मोहनजोदारो से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के चित्र बनाए। अंडरस्टैंडिंग द प्रिएम्बल, द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution's core values are the guiding principles for policies and decision makings, which the government is expected to follow. Citizens are also expected to practice them to the best of their ability. These guiding values are present across the Constitution, but their essence is written in the preamble. So let us study the preamble, which is fitting end to this chapter. संविधान के मूल मूल्य नीतियों और फैसलों का आधार है। सरकार और नागरिकों से इन्हें मानने की उम्मीद है। इनका सार प्रस्तावना में है। आइए प्रस्तावना पढ़ें जो इस अध्याय का सही अंत है। तो आपको नेक्स्ट पेज में कुछ प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, तो आप इसे रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।